Hare Krishna. So we are on the 20th verse of the 5th chapter of Gita, entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. We have been seeing last couple of verses that this chapter is an amalgamation of all the teachings that Lord has given in the 3rd and 4th chapters. So we have a lot of corollaries that come in 2nd, 3rd and 4th chapter which will synchronize with the texts here. We see भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग और कर्म योग इन दोनों का समन्वय दिया, दोनों के बारे में शिक्षाएं दी, जिसके बारे में सुन करके अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हुए और उन्होंने पूछा कि इसमें से अच्छा कौन सा है. एंड दैट इज हाउ 3rd चैप्टर स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन ऑफ अर्जुन. 3.1 is a question of Arjuna. So 3rd chapter Krishna explains about Karma Yoga. 4th chapter Krishna explains about Buddhi Yoga. Still Arjuna is confused. That's how we have 5th chapter also, 1st verse, beginning with a question of Arjuna. And then now Krishna is amalgamating 3rd and 4th and 2nd. So इसलिए इन श्लोकों में हम काफ़ी सारे कोलोररीज देख सकते हैं. आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, न प्राहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः. Krishna says, a person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God, is already situated in transcendence. So, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक रूप से प्रगत कहता है तो उसके कोई चिन्ह भी तो होने चाहिए. हमने यही चीजें भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी देखी हैं. यस, भगवान से अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. तो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. अगर कोई व्यक्ति सही में कहता है कि मैं मिलियनेयर हूं, तो अरे मिलियनेयर मतलब बैंक बैलेंस में कुछ तो दिखाना चाहिए ना. दैट इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिलियनेयर. 10 लाख रुपए होने चाहिए उसके बैंक अकाउंट में, तभी तो वो मिलियनेयर है. नहीं तो ठन गोपाल है और घूमता फिर रहा है मैं मिलियनेयर हूं. काहे का नहीं, ठन गोपाल होते हुए कोई अपने आप को मिलियनेयर नहीं कहेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रगत भक्त बहुत दिखाएंगे. इसीलिए भगवान बताते हैं कि सही में प्रगत भक्त के क्या लक्षण है. He says, neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant. न प्राहृष्येत प्रियम प्राप्य. कुछ अच्छा मिलने पर वो सुखी नहीं होता. नो द्विजेत च अप्रियम प्राप्य अप्रियम. अगर कोई उसे अच्छी चीज नहीं मिलती, something which he doesn't want, he doesn't lament over it. So हमने देखा इस जीवन के 2 प्रमुख मूल आधार हैं जिनसे ये भौतिक चक्र चलता है. हैंकरिंग, लेमेंटेशन. Yes. So hankering for something which is not there, lamentation once one has it. इनसे जो ऊपर उठ चुका है. Then Krishna says, स्थिर बुद्धि. What does स्थिर बुद्धि mean? स्थिर बुद्धि means one whose mind is controlled. And asammudha, sammohan, bewilderment. In this entire material creation, everyone is bewildered by bodily concept of life. मैं शरीर हूं. तो जो व्यक्ति इस bewilderment कि मैं शरीर हूं, इससे जो ऊपर उठ चुका है, जिसका मन अपने आध्यात्म में स्थित है, one who has controlled mind,
And as a result of controlled mind, he does not lament when something unpleasant comes, and he doesn't rejoice when something pleasant also happens. He is a transcendentalist. So हम देखते हैं, this is quite a corollary to श्लोका 56 in second chapter. अगर आपको याद हो, हमने देखा था भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते. One who is not disturbed even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, or who is free from attachment, fear and anger, he is called a sage of steady mind. And the same thing Krishna says in 5.20 also. Similarly, what we discussed yesterday, 5.19, we can find the corollary in 2.48, जहाँ पे भगवान बताते हैं, योगस्थुः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. So we see, आपको यहाँ पे एक पीछे बोर्ड दिख रही है. So एक जीव का प्रवास भी इस भौतिक जगत में ऐसा ही है. जिस प्रकार से बोट को चलाने के लिए आज तो हमारे पास मोटर है, एक नाविक चाहिए जो उसको चलाना जानता हो, और समुद्र भी शांत चाहिए. अगर समुद्र बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है, हम उस छोटी सी बोट को, नैया को नहीं पार लगा सकते. सो सिमिलरली, गेटिंग spiritual assistance in this material world is like calming down the sea of agitated senses. Having a boat is spiritual sangha that we have, and the navik is the devotee or guru who is directing us pass through this material realm of water, and the motor is the teachings of Bhagavad Gita. ये सभी हैं तो एक जीव आराम से इस भौतिक जगत की नैया को पार करके आगे जा सकता है. इसीलिए हम देखते हैं कि सबके लिए थोड़ी साधना की जरूरत है, जिससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारा अहंकार, ये सब थोड़े से नियमित तो हो जाए ना, जीवन सफल हो जाए. इतना बड़ा सागर है, लेकिन वो छोटी सी बोट एक व्यक्ति को इधर से उधर लेके जाने के लिए काफी है. उसी प्रकार थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान हमें भौतिक जगत की नैया पार कराने के लिए काफी है. हमारे साथ बने रहिए. हरे कृष्ण. Krishna Krishna